کیا یہ جو پسماندہ علاقے کیا یہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا نیشنل اکنامک کاؤنسل میں ہمارا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اپنے آپ کو یوں دکھا رہے ہیں کہ جیسے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو گئی 18ویں ترمیم کے بعد. ایسا قطعی نہیں ہے. سندھ کی عوام سندھ ہے، آپ سندھ نہیں ہیں. 13 سال سے آپ کی حکومت ہے، اور 13 سال میں جب 2010 میں آپ کو 18ویں ترمیم آئی اور بے تحاشا اختیارات آپ کی طرف آ گئے، تو آپ نے کیوں نہیں سوچا ان یونین کاؤنسلز کا؟ آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ بدین کے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے؟ آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا آرٹیکل 25A اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ڈالتا ہے، پرائم منسٹر کی بھی اتنی رسپانسبلٹی ڈالتا ہے؟ تو آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ یہاں کوئی ہسپتالیں ہوں، سکولز بہتر ہوں؟ ابھی تو ایک کلپ چل رہی تھی جس میں آپ نے شاید دیکھا ہو کہ دادو کے اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی تھیں. آپ تو انصاف اپنے دادو کی عوام کو نہیں دے سکے، لاڑکانہ کی عوام کو نہیں دے سکے. آپ کو اعتراض ہے کہ اگر انہوں نے بدین یا لوور لیس ڈیولپڈ ایریا کے بارے میں سوچا؟ نہایت مایوسی ہے پورے سندھ میں، اور یہ سندھ نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی بھی الیکشن کر کے ان کو بھی لایا گیا ہم بھی جانتے ہیں. لیکن میں اس سے آگے بھی بڑھوں گی. یہ آپ تو یہ کہیں کہ پرائم منسٹر بہت مہربانی ہے آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کے لیے تو یہ چیلنج ہے، تختیاں آپ اپنے نام کی لگا لیجئے گا، لیکن یہ چیلنج ہے کہ آپ نے 13 سالوں میں، چھوڑ دیجئے کہ ہمارے اسپیکر کے ٹائم جو وہاں کام ہوا، اور اس نے اسٹیبلش کیا کہ جب ہم سین سے ہٹے تو وہاں پہ آج اسکولوں میں کتے اور بلیاں اور بھینسیں پل رہے ہیں. آپ جو اس کے بعد NFC کے بعد آپ کا کام تھا کہ پروونشل فائنانس کمیشن دیتے. آپ کا کام تھا کہ آپ جو یہاں پہ ڈی سینٹرلائز کی بات کرتا ہے اور لوکل گورنمنٹ کی بات کرتا ہے، جس طرح کی لوکل گورنمنٹ آئی وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے، اور جس طرح کی وہاں پہ اس وقت حکمرانی چل رہی ہے کہ شاید جو کنگ فور لوئی جو فرانس کے، کہ شاید کہ ان کے بھی طرز زندگی ایسا نہ ہو جو یہ آپ سب کے ہے. ہر شہر میں آپ کے محل ہیں، ہر چیز، پرائیویٹ جہازوں میں آپ سفر کرتے ہیں. میں آپ کو وہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج سندھ کے پسماندہ علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. جو مریض ہیں وہ ہسپتالوں، جو رستے ہیں، ٹریکٹر ٹرالی پہ چڑھ کے جب وہ پہنچتے ہیں وہ آدھی لاش، آدھے مردہ ہو کے ہسپتالوں تک جاتے ہیں. جو اسکول کے بچے ہیں وہ صرف ڈرگز، میں نے خاص طور پہ یہ اس لیے پڑھا تھا آرٹیکل 37 کا G، کہ سوائے ڈرگز آپ کی سرپرستی میں وہاں ہو رہی ہے. جس طرح یوتھ ہماری نشوں اور ڈرگز اینڈ گیملنگ آپ کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر چل رہی ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں کون کون ملوث ہے. آپ ٹریکٹر ٹرالیوں پہ وہ عورتیں جو ڈیلیوری کی اس میں ہوتی ہیں، اور ہسپتالوں تک پہنچتے پہنچتے بچے بھی مر جاتے ہیں اور مائیں بھی اس تک آ جاتی ہیں. اگر آج اس یونین کاؤنسل میں سڑکیں گئیں تو یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. آپ نے نیشنل فائنانس کمیشن کے بعد آپ نے یہ انصاف کیوں نہیں کیا؟ پروونشل فائنانس کمیشن کیوں نہیں دیا؟ آئل اینڈ گیس کی رائلٹی بس وہ بھی ہماری ہے، NFC ہے وہ بھی ہمارا ہے. صرف 1 سال کا اگر آپ حساب لگائیں گے، صرف 1 سال، تو 1 کھرب روپیہ سندھ میں گیا. کہاں خرچ ہوا؟ مجھے بتائیے. بدین میں کہاں آپ نے خرچ کیا؟ آپ نے، اور جو ہمارے پسماندہ علاقے، یقیناً میاں سمرو صاحب بھی اپنے حوالے سے بات کریں گے، کہاں خرچ کیا؟
पैसा आपने कहीं किसी जगह नहीं लगाया? तो गरीब अवाम, वो जो गरीब मिस्कीन जो पैर उघाड़े चलते हैं, खाली पेट चलते थे और आपके नारे मारते थे, आज बड़ा अच्छा जमहूरियत ने उनके साथ इंतकाम लिया है। 13 साल की अनइंटरप्टेड पूरी पावरफुल तरीके से आपने हुक्मरानी की है, बादशाहत की है, और हर डिसेंट का गला दबाते चले गए, हर डिसेंट को दीवार से लगाते चले गए या इस हस्ती से मिटाते चले गए। मैंने उस दिन पानी की बात क्या कर ली, और मैंने सबूत के साथ, आप जरूर आप लड़िए, सिंध का केस लड़िए, हम हैं, हम सिंध है, आप नहीं हैं, क्योंकि अवाम है सिंध जो सफर कर रही है। आप तो हुक्मरानियों में एक एक का लाइफस्टाइल उठाइए, सिंध कैबिनेट के अरकान आज आप एक एक की निकालिए कि क्या सूरत हाल थी। आपकी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, कहीं अपोजिशन की सिंध असेंबली में जरा जमहूरियत की शक्ल देख लीजिए, किसी स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन की नुमाइंदगी नहीं है। आप क्यों डरते हैं एहतसाब से? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का सेक्शन 15 है या पैरा 15 है, जो बात करता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब लीडर ऑफ अपोजिशन करेंगे क्योंकि वो चेक, लेकिन सिंध असेंबली में यह नहीं होगा। सिंध असेंबली में हम ढूंढ के इतने कमजोर लाएंगे शख्स जो कि एक शायद एमपीए हैं वहां नवाब शाह से, क्या वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे? वो लगाएंगे इनकी गवर्नेंस पे ऑडिट पैरास? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट उठा लीजिए रिकॉर्ड पास्ट का सारा और बता दीजिए, एक एक की आप सीवी निकालिए, देखिए जो करप्ट से करप्ट तरीन लोग, उनको कोशिश होती है कि वहां पहुंचा दिया जाए। तो आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, सारा पैसा फेडरल आपको दे दे। भाई एनएफसी तो मिल रहा है ना, लेकिन अगर ये पीएसडीपी जो फेडरल बज होता है शेयर, उसमें अगर उन्होंने, हम बार बार शोर मचाते हैं, हम बार बार कहते हैं कि भाई लेस डेवलप्ड एरिया की तरफ फोकस करें, और यह भी आपको पता होगा कि एनएफसी का 10% लेस डेवलप्ड एरिया के लिए जाता है। बताइए कौन सबसे ज्यादा गरीब है इनमें से जो खा जाता है? कहां जाता है वो लेस डेवलप्ड एरिया का शेयर हमारा? तो आप तो एनएफसी में भी इंसाफ नहीं कर रहे हैं। अगर इनकी नीयतें सही होती और ये वाकई चाहते कि बराबरी की बुनियादों पे सिंध डेवलप हो, तो ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन देते। आपने ये भी सुना होगा कि एक दिन में 20 बच्चे कुत्ते के काटने से जख्मी भी हुए और मारे गए। एक बड़ी दर्दनाक क्लिप चल रही है कि वो बच्चा हाइड्रोफोबिया में तड़प तड़प के मर गए। ये लारकाना के बच्चे हैं, ये भुट्टो की धरती के बच्चे हैं जिनके साथ आपने ये सब सलूक किया है। हम बेवकूफ हैं, सिंध की आवाम, हम लोग सब बेवकूफ हैं। अगर मैं निकाल के ये इलीगल इन्होंने जो डीओज बांटे हैं वहां पे, अगर मैं ये फ्लोर पे उठाती हूं और ये बात करती हूं, तो ये अपने क्रिमिनल्स के जरिए मेरी जमीनों पे हमले करवाते हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, और उनके पास वो वेपन्स हैं जो पुलिस के पास नहीं है। और अगर ये गलत होता तो ये अपने डायरेक्टर को नाम नेहाद, क्योंकि फ्लोर पे जब मैंने बात की तो सीडा के डायरेक्टर को ट्रांसफर कर दिया गया। भाई अगर सिंध में पानी की कमी है, टेल एंड पे पानी नहीं पहुंच रहा, तो क्या टेल एंड सिर्फ आप तक आपकी जमीनों पे जाके खत्म हो जाती है, बाकी सिंध नहीं है? तो ये आप इलीगल कैसे दे रहे थे डीओज? कैसे आपने ये पानी की कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद ये बांटा? और आपने वो ट्रांसफर इनफ सजा नहीं है।
इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट भी उतना इन्वॉल्व है। आप कहते हैं हमारे जरिए करवाइए, भाई लाइनिंग ऑफ कोर्सेज है, 13 अरब रुपया उसमें आया, जरा दिखा दीजिए ना बदीन में कितनी लाइनिंग ऑफ कोर्सेज आपने की। 11 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट का सूबे ने इस्तेमाल किया, जरा दिखाइए कहां लाइनिंग ऑफ की कोर्सेज आपने किए। सो हर चीज आपके हाथ में आ जाए ताकि आप उसको खा पी तबाह और बर्बाद करके रख दें। हमसे नहीं पूछा भाई आप कौन है, अवाम क्या चाहती है। आप और अवाम में इतना फर्क है क्योंकि आपने वो सुना था ना ये स्पोर्ट्स में बायोसिक्योर बबल, आप तो उस दुनिया में रहते हैं। आपका कंसर्न अवाम से है ही नहीं कि वो प्यासे मरे, भूखे मरे, कुत्ते खाएं, हेपेटाइटिस हो, या मैंने वो आप लोगों को जब मैंने 2013 में जब मैंने छोड़ा था, मैंने उस वक्त पानी की बोतल एक उठा के दिखाया था। मैं आज भी इन्हें चैलेंज करती हूं, आइए बदीन में उन नहरों का पानी जो आप उन बच्चों को पिला रहे हैं, एक घूंट उसमें से पीजिए, एक घूंट पीजिए, हम अपना केस सरेंडर कर देंगे। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, डाकू राज है जरूर जो वहां पे इस वक्त डाकू और जो सूरत हाल हुई है। भाई 13 साल से आपकी हुकूमत है, कोई तो मुझे जवाब बता दीजिए किसने की उनकी सरपरस्ती। लेकिन ये जो सिंध हुकूमत है ये खुद डाकू राज है, जिस तरह कि ये इनकी हुक्मरानी है। मैं सुमरो साहब से चाहूंगी कि अगर वो भी कहें तो मैं जरूर इसके साथ अगर ये सारी स्कीमें जिसकी बात उन्होंने की अगर उन्होंने दी हैं तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। उस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का सिवाय इस चीफ मिनिस्टर के जो सिंध में जा रहा है पैसा, सूबे में जा रहा है, वफाक कहीं और तो नहीं दे रहा था, सिंध को दे रहा था, सिंध के बच्चों के लिए दे रहा था, सिंध के गांव तक दे रहा था। मैं उस पूरी इकोनॉमिक काउंसिल का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, प्लानिंग कमीशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, और मैं उनसे दरख्वास्त करती हूं कि प्लीज जितना ज्यादा करानी चाहिए, और वो सिस्टम जो आपके फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि अभी आरबीओडी का फेज 2 शुरू होना है, जिसकी जो इंप्लीमेंट सिंध हुकूमत कराएगी। लेकिन मैं अगर मियां सुमरो साहब से चाहूंगी कि वो इसमें कह दें, लेकिन हमारी सुपरविजन होनी चाहिए। शुक्रिया। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मौका दिया, और जैसे हमीदा साहिबा ने एक बहुत ही तफसीली जायज़ा दिया है हालात का, मैं थोड़े इजाफी उसमें अर्ज़ कर दूँगा दोहराने की बजाय। हालात ये है कि सबसे पहले हुकूमत का जो काम है सिक्योरिटी से शुरू होता है। आपने देखा पिछले दिनों में क्या हाल रहा है। मैं ज़रा, क्योंकि मेरा जो इलाका है जिससे मेरी वाबस्तगी है वो बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ है, सरहद के साथ है, और वहाँ दर पे दर हमले होते हैं गाँव पे, हत्ताखोरी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तामीराती सिलसिला है, बहुत ही खस्ता हालत में है। जुआ, मंशियात, इन सब का अदी ने जिक्र किया। एक और हमारी तरफ बहुत सख्त बीमारी है, वो है सूदखोरी। करीब सादा लोगों को बहुत हाई रेट पे सूद वो देते हैं पैसे, वो बेचारे खर्च कर देते, नहीं मिलता, उनसे फिर जोर हादसा उनका छोटा कुछ होता है उनसे वो भी ले लेते हैं, कब्जे कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन में लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो ये करते, बाअसर लोग ये कर रहे हैं।
باثر لوگ، کیونکہ جو پیسہ آپ کا ہے جو ڈکلیئر نہیں ہے پھر آپ اس کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں. کوئی یعنی احساس نہیں، اللہ کا خوف نہیں رہا جو جس طرح کے آپ ان کے حالات کریں لوگوں کے قریب. منشیات، جوئے کی عادت، یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے اور زیادہ حالات خراب ہو رہے لوگوں کو. اسپتالوں کا حال اگر آپ جائیں جیکب آباد میں تو بہت ہی خستہ حال میں ہے. یہ اسپتال وہاں کا جو سول ہاسپٹل تھا بلوچستان ساؤتھ پنجاب تک لوگوں کی خدمت کرتا تھا. اب دیکھیں تو چند ہی وہاں عملہ چند ہے، چند لوگوں کا ہے جو کہ بالکل ہی بہت کم سروس دے سکتا. ایک نیا اسپتال بنا ہے GM نے بنایا ہے، اس کی بھی تعداد اور کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ میٹ نہیں کر سکتا. علاقہ کافی بڑا ہے، مردم شماری بڑھ رہی ہے. ان سب چیزوں کو یہ توجہ طلب ہیں یہ سب چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میں بہت ایک اہم بات ہے کہ وہاں تجاوزات بہت زیادہ ہیں. با اثر لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں اور جو کھاتے ہیں یا ٹائٹل ہیں جو رجسٹری ہیں سب غلط بنا لیے ہیں. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ یہ دیکھا جائے ان کو. میں عرض کروں گا کہ ان کے ٹائٹل کو بھی چیک کیا جائے، کیونکہ غلط ٹائٹل جب آپ چیک کریں کہیں نہ کہ آپ کو لگ جائے گا کہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، ان میں کڑی جو ہے کمزور ہے، تسلسل نہیں ہوگا. اور یہ بالکل باثر لوگ اس طرح کر کے بیٹھے ہیں. چھوٹے غریبوں کے تو تجاوزات ہٹا دیتے، اصل جو ہے ان کو کوئی کچھ نہیں دیکھتا. جہاں پبلک کے گورنمنٹ کے پرانے ریسٹ ہاؤس تھے، ڈاک بنگلو کہا کرتے تھے، وہاں لوگوں نے گھر اور کمرشل ادارے بنا لیے. وہاں ایک کیونکہ گھوڑوں کی نسلیں بڑی اچھی ہوتی تھی وہاں اس علاقے میں، وہاں جو ایک اسپتال تھا جانوروں کا، ادھر بھی جناب اپنے کمرشل ادارے بنا لیے ہیں، گھر بنا لیے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھا جائے. پر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو حصہ ہے سندھ کا پلاننگ کمیشن نے ایک بڑے توازن کے ساتھ، PTI ایک ملک گیر پارٹی ہے، ہر علاقے کا اس کو احساس ہے اور خیال رکھتی ہے. بڑے توازن کے ساتھ سندھ کا حصہ ہر سال بڑھا ہے، دوسرے صوبوں کو بھی ملا ہے. تو یہ کہنا کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کچھ مرکز کرتا ہے کچھ سندھ کرتا ہے. ہر کوئی اپنا جو ہے رول انشاءاللہ مرکز جو ہے جہاں اس کی کوتاہی ہے بتائیے اس کو دیکھا جائے گا. جو صوبے نے کرنا اس کو وہ خود دیکھیں. کنال لائننگ ہے اس پہ اتنے پیسے خرچ ہوئے لیکن کوئی نظر نہیں آتا. بھل صفائی یا کھاٹی ہم سندھ میں کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی. پھر جو ٹیل اینڈر ہیں ان کو پانی نہیں پہنچتا. یہ سب چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن آپ کی روزمرہ زندگی کا اثر ہوتا ہے، ان پر اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا. یہ کتنا بھی ہم دہرائیں یہ اثر تب ہوگا جب اس کو سمجھا جائے. آپ لوگ اس کی مہربانی کر کے ترجمانی کریں کہ یہ جائے چیزوں کو دیکھیں کس کس طرح کیا ہو رہا ہے. جو ملک میں اگر کسی کو سمجھتا ہے بھی ریٹ ان کو کم ملا حصہ بتائیں، اس کو دیکھے گی پلاننگ کمیشن. لیکن پلاننگ کمیشن میں ان کو داد دیتا ہوں NEC کو بھی کہ بڑے انہوں نے سوچے سمجھے اور ایک بڑے مہذب طریقے سے بڑے میچور طریقے سے ہر کسی کو اپنا حصہ دیا ہے اور اچھی طرح جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. ایک دم سب کچھ نہیں ہو سکتا، وقت لگے گا کہ کئی سالوں سے جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب ہمارے پاس لوگوں کی شکایت ہے کہ یہ گیس نہیں آتا. یہ گیس کی پائپ جو پرانے آج سے 60 سال پہلے ڈالے تھے اس کو ایک دم تو چینج نہیں کر سکتے. جو آخری حصے میں ہے یا ٹیل اینڈ پہ ہے گیس سپلائی پائپ کی جو ہے ڈائیمیٹر وہی ہے، جو اس کی جو اپنا کیپیسٹی وہی ہے. آپ نے کنیکشن بڑھا دیے تو کیسے پہنچے گا تو پریشر نہیں ہوگا. وہ بھی ریپلیس کرنا شروع کیا. 2010 میں جو فلڈ آئے تھے بجلی کے کھمبے گر گئے تھے ان کو آج لیکن وقت لگ رہا ہے، ٹائم لگ رہا ہے اس لیے کہ وسائل محدود ہیں. سب گردشی قرضہ ہے، باقی چیزیں ان سب کو بھی تو دیکھنا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں میں آپ سے عرض کروں گا یہ کبھی نہ سوچیں کہ PTI کی حکومت کہیں کسی صوبے کو نظر انداز کرے یا کسی علاقے کو نظر انداز کرے. ملک گیر پارٹی ہے، ہر کسی کو ساتھ لے کے چلنے والی پارٹی. جو عدی نے بولا تفصیلی میں اس کو نہیں دہراتا. اور تھوڑا میں کراچی میں بھی جو پروجیکٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کافی چل رہے ہیں. انٹیریئر میں RBOD بڑا ضروری ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بھی تو صحیح ہوگا کیونکہ ساری زمین خراب ہو رہی ہے، ایفلوئنٹ جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، ڈرینیج نہیں ہے. تو اس کو امپلیمنٹ کریں صحیح طریقے سے تاکہ جو ہے ایفلوئنٹ سارا سمندر میں جائے، زمین میں جو اس کی کوالٹی اچھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا کراپ پر ییلڈ ہماری بڑھے. دوسرا ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جیسے ندی نے بھی کاٹ جائیں دوائی نہیں ہے اور ہمارے پاس سانپ بہت ہیں. سانپ اگر ڈس جائیں تو اس کے لیے بھی جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ چیزیں وہاں اسپتالوں میں اور گاؤں کے تحصیلوں میں ضرور ہونی چاہیے. کئی جانیں بچ سکتی بالخصوص بچوں کی کیونکہ وہ اسے سب سے پہلے بیچارے وکٹم وہی ہوتے ہیں. تو کئی ایسی چیزیں جو توجہ طلب ہیں. ٹائٹل ڈاکیومنٹس کے میں نے عرض کیا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس. رجسٹریاں بنا لیتے ہیں، تسلسل نہیں کہ جی ہماری آبائی اجداد زمین ہے جو کہ پہلے تھی نہیں. وہ سب نے دیکھے، لوگ زندہ جنہوں نے وہاں دیکھے کہ سرکاری ملکیت ہے، وہاں سرکاری اسٹرکچرس تھے. اس کو آپ سڈنلی اپنا ایک دم بنا لیتے کہ جی ہمارا ہے یہ. اور پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے آگے جائے تاکہ پیسے جس طرح ہونا ہے NFC کے بعد PFC ہونا تھا.
تو وہ سارے بنائے تاکہ جو ہے ڈسٹرکٹ تک پیسے پہنچے, ہر کسی کو اپنا حصہ ملے اور کسی کو پھر گلا شکوہ نہیں ہوگا. اس میں بڑا اچھا فارمولا ہے, سب کا اس میں جو ہے حصہ رہے گا. پانی کی لیے ٹیلی میٹری لگائے تاکہ یہ شک جو اپنے صوبوں میں بین صوبائی یہ جو ہوتی ہے خامخواہ ایک قسم کی کشیدگی, یہ بھی دور ہو جائے گی. ٹیلی میٹری لگائیں, آپ لوگ اپنے وہاں لگائیں, نیوٹرل بائی اسٹینڈرڈ کریں. وہ اس کا مجھے اس لیے یاد ہے, ارسا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا سندھ گورنمنٹ میں, اس کا میں چیف ایگزیکٹو گورنر تھا, تب 2000 میں ہم نے ارسا کو شفٹ کرایا تھا اسلام آباد تاکہ یہ کیپٹل ٹیریٹری میں رہے اور روٹیشن باقاعدہ چلے. اس میں صوبے کا باری باری جو ہے چیئرپرسن ہے, اور ٹیلی میٹری کا تب سے شروع ہوا تھا. وہ پھر بعد میں خراب کر دیا گیا, اس کو ٹھیک کریں, نیا لگے. اب تو خیر ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی, جہاں جہاں کوئی شک کی گنجائش ہے, کوئی کشیدگی کی وجہ ہے, وہ دور ہو سکتی ہے, اس کو توجہ دے کے دور کرنی چاہیے. ہر کوئی اس میں اپنا رول کرے. ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ چیزیں جو ان کی طرف ہمارے اسکول اگر بند ہیں تو کیسے پھر آگے بڑھیں گے, کیسے کمپیٹ کر سکیں گے. یہ میری موٹی موٹی چیزیں تھیں. بہت بہت مہربانی, آپ سب کا بہت شکریہ. ملک صاحب, بول ٹی وی سے. میں ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ اچانک 3 سال کے بعد کیسے یاد آ گیا ہے سندھ گورنمنٹ کو ان کے ساتھ پانی کے حوالے سے زیادتی ہو رہی ہے. آپ بھی سندھ سے ہیں, آپ لوگوں نے بھی اپنا نقطۂ نظر پیش کیا ہے, اور جب اجلاس کے اندر ہوتے ہیں ادھر تو ایسی کوئی ہمیں پتہ چلا کہ ایسی بات نہیں. تو یہ کیا سیاست ہو رہی ہے پانی کے اوپر؟ نمبر 2, آپ وزیر ہیں آئی پی سی کی, کل آپ کے سامنے جو سی او پاکستان کرکٹ بورڈ نے جرنلسٹوں کے حوالے سے جو بیان جاری کیا ہے, جو انٹرویو دیا ہے, اور راشد لطیف نے انہوں نے کہا کہ جس طرح ذمہ داروں نے کتے رکھے ہوتے ہیں آج کل لوگوں نے جرنلسٹ رکھے ہوئے ہیں. آپ وفاقی وزیر ہیں, کیا آپ ان سے بات کچھ کریں گے, کیونکہ آپ ہمارے وزیر بھی ہیں اور اس حوالے سے جرنلسٹوں کے بھی آپ ساتھی ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی, ایک تو میں چاہوں گی کہ اگر یہ ہم خاص اس پہ اس وقت فوکس رکھیں کہ جس حوالے سے پریس کانفرنس ہوئی ہے کر رہی ہوں, اور جو مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے کل سی ایم سندھ کے, اللہ تعالیٰ انہیں عہدے دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا, 13 سال آپ کی حکومت رہی ہے, اور یہ تو پہلے فائنینس منسٹر تھے, پھر سی ایم ہو گئے, اب جو ہے کہ کیا تا حیات والی جو ان کی پلاننگز ہیں. پر بہرحال میرا جو مین تھا کہ اس سے کہ وہ بہت تکلیف ہوئی کہ آپ کے صوبے میں اگر ایک پیسہ جا رہا ہے تو آپ تو خوش ہو کے اپریشیٹ کریں, آپ تو ان کو کہیں کہ ہاں یونین کاؤنسل کیا, آپ تو بلکہ جہاں بھی, کیونکہ یہ ایک اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, یہ صرف یہ بتاتے ہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کوئی الگ علاقہ ہیں, باقی ہم ہیں سب جو ہیں, تو یہ نہیں ہے. عوام ہوتی ہے, عوام ہے جو سندھ ہے, جو آج بری طرح سفر کر رہی ہے. اور میں بلکہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے کہوں گی کہ پلیز میڈیا, آپ سب کو میں دعوت دیتی ہوں, اگر مجھے آپ کا ایکسپینس, میں کہتی ہوں کہ چلیے ذرا ایک دفعہ پلیز سندھ کے لیے آواز اٹھائیے, کیونکہ سندھ بری طرح سفر کر رہا ہے. آج آپ سگنیٹری ہیں ایس ڈی جیز کے, اور ان سگنیٹریز پہ, ان ایس ڈی جیز پہ کہ آپ سگنیٹری ہیں, تو آپ اس کے لیے کیسے, اگر ایک صوبے کا ایک پیچھے رہ جائے گا, آپ ہر چیز میں, پہلے ہوتا تھا کہ بلوچستان, آج تو صوبہ سندھ سب سے پیچھے رہ گیا ہے. دیکھیے کہ ہم تعلیم میں کہاں کھڑے ہیں, دیکھیے ہم ہیلتھ میں کہاں کھڑے ہیں, دیکھیے ہمارے ساتھ جو ایگریکلچر ہو یا لائیولی ہوڈ ہو, اس میں ہم کہاں آ گئے ہیں. تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ نے پانی کی بات کا میں ضرور جواب دینا چاہوں گی. یقیناً دیکھیں ایک پانی کی شارٹیج ہے, اور ہم بھی کہتے ہیں ارسا کو کہ سندھ کو اپنا پورا شیئر ملنا چاہیے, جو ہمارا شیئر, اور جو شارٹ فال ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے سارے صوبوں میں. جب تک یہ انصاف نہیں ہوگا تب تک جو ہے کہ ہم خدشات دور نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ڈیفرنٹ سٹیٹ ہیں, آپ سے جواب نہ لیا جائے کہ بھئی اگر سکھر بیراج جس کے گیجز غلط ہیں, جو ابھی فگرز ہمیں دیتے ہیں وہ ایکچولی صحیح فگرز نہیں دیتے ہیں ہمیں, لیکن پورا 50% آپ بیچ میں پانی کھا جاتے ہیں, اور کوٹری تک پہنچتے پہنچتے تک وہ پانی آدھا رہ جاتا ہے. 1000 کیوسک اگر آپ کے پاس رہ گیا, یا 2000 کیوسک,
तो बच्चे बिलबिला रहे हैं या वो गंदा गटर का पानी पीने पे मजबूर हैं। तो आप भी तो इंसाफ कीजिए ना सूबे के अंदर कि आप इलीगल आउटलेट्स दे रहे हैं डायरेक्ट कैनालों से, जो कि बैन है हुकूमत की तरफ से। तो ये जो साजिशी तरीके हैं जी, बिल्कुल कोर्ट की तरफ से बैन था। हम वहां पे हमारे लोअर सिंध में चावलों की पोक होती है। चावल जो है कि वहां पे कोठड़ी बैराज लेफ्ट बैंक के जो ग्रोअर्स हैं उनका जो होता है सारा दारोमदार, क्योंकि वो एक फसल ऐसी है जिसमें कम से कम आपका इनपुट लगता है। लेकिन आज उधर बैन कर दिया गया है। अगर एक गरीब आदमी चावलों की फसल नहीं कर सकेगा तो क्या करेगा? और ये जरा उठा के तो देख लें कि बाय इलेक्शन से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन भी चुप, सब चुप। अगर मीडिया भी चुप हो जाएगा तो फिर क्या होगा उन लोगों का हाल? जी जी, मैं क्योंकि ये मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन अगर कोई ऐसा कहे तो मैं उसे कंडेम करती हूं कि इस तरह की बात करना। जी गुज़श्ता 13 साल से एक ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में। जी, गुज़श्ता 13 साल से पाकिस्तान में एक ड्रामा चल रहा है। वफाक कहता है कि सिंध गलत है, सिंध कहता है कि वफाक गलत है। वफाक का ये है कि आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाते, मॉनिटरिंग नहीं करते प्रोजेक्ट्स की। और ये वाकई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जो है ये असद उमर खुद कहते हैं कि पाकिस्तान भर में वीक है, बल्कि एब्सेंट है। और सिंध कहता है कि आप हमसे वफाक का खसारा पूरा करने के लिए का फंड ले लेते हैं, लेकिन आप हमें फंड्स नहीं देते। अब ये दोनों का जो है इसमें कुछ जेन्युइन बातें भी हैं दोनों में। कौन सी अथॉरिटी होगी जिसको बिठाकर आप ये मसला हल करेंगे? क्योंकि अगर ये लीगल कर गया तो हर साल 1000 अरब रुपए से 1500 अरब रुपए डाउन द ड्रेन चला जाता है इस मसले में। तो आप इसका हल क्या करेंगे? जी देखिए, बहुत अहम बात की आपने। और पर मैं ये कहती हूँ पहले कि इंसाफ, आप जिनके लिए पैसा मांग रहे हैं, पैसा मांग किसके लिए रहे हैं? अवाम के लिए कर रहे हैं ना। मतलब फेडरल गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है? फेडरल गवर्नमेंट घूम के जाके वो पैसा तो सूबों में जाता है ना। अगर मेरे पास जैसा ये अभी पीएसडीपी फेडरल फंडेड है ना प्रोजेक्ट्स, वो पैसा फेडरल क्या है? इनसे मैं जरा पूछ, क्या सिर्फ इस्लामाबाद है? भाई अगर ये पैसा जा रहा है सूबों में और अगर सूबों में खर्च हो रहा है, और मैं अभी एक सरसरी जो मुझे ऐसे याद आ रहा है कि पिछले 3 साल की पीएसडीपी में तो सिंध सूबे का फंड ज्यादा जो नजर आया मुझे, लेकिन मैं इसलिए अभी तफसील में नहीं जा सकती जब तक मेरे सामने पूरी होना। लेकिन आज अगर ये जो भी सिंध पीएसडीपी में दे रहा है, मैं तो कह रही हूं और दें ना, आप भी खुश हो, आप भी कहें कि और दें। अब मॉनिटर, यकीनन मॉनिटर होना चाहिए, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या आईपीसी मिनिस्ट्री थी। मैं 3 साल से कोशिश कर रही हूं कि आइए बैठिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद इख्तलाफ तो कम होने चाहिए थे जब रिसोर्सेज ज्यादा मिल गए, जब 57% से ऊपर सूबों में चला जाता है, तो उसके बाद तो एक हार्मनी होनी चाहिए थी ना। आपको वो मैकेनिज्म बनाने चाहिए थे कि जहां कमी पेशी है तो सीसीआई में बैठें और ऐसी आईपीसी के अंडर बैठें, आए बैठें। मैं तो खुद सिंध से हूं, मैं तो खुद ये कह रही हूं कि सिंध को मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो सिंध में आके आप एक चंद हाथों में चला जाता है, किसकी जेब में जा रहा है पैसा? आप तो बताएं ना। अगर ये मॉनिटरिंग नहीं होगी, अगर सिंध के बच्चों तक, अवाम तक वो पैसा नहीं जा रहा, अगर वहां तालीम पे खर्च नहीं हो रहा, अगर हेल्थ पे खर्च नहीं हो रहा, उनके कैनालों पे इरिगेशन, सर इरिगेशन डिपार्टमेंट के प्लीज सिंध हुकूमत के सिंगा निकालिए कि 2010 से, मैं 8 की बात नहीं करती हूं, जब से एनएफसी आया और उस मद में जो आपको पैसे मिले और आपके अपने रिसोर्सेज भी बढ़ गए, जो सर्विसेज टैक्स आपके पास आ गया, आपके अपने रिसोर्सेज बढ़ गए, तो आपने उसमें से सिंध पे क्या खर्च किया? मैं तो ये जानना चाहती हूं। मैं तो खुद इनसे सवाल करती हूं, आपने सिंध पे खर्च क्या किया है? कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्यों नहीं है? कोई अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है?
देखिए, अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट में होती है, अकाउंटेबिलिटी स्टैंडिंग कमेटीज में होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होती है। वहां पे अगर आप न किसी की नुमाइंदगी देंगे, किसी को आंसरेबल नहीं होंगे, आप अपोजिशन को दीवार से लगा देंगे, एक आवाज उठेगी तो आप उस पर बिशारत जरदारी छोड़ देंगे, क्रिमिनल्स छोड़ देंगे, तो क्या होगा? आपके पैसे की मॉनिटरिंग तो जो कौमी असेंबली की और सेनेट की कमेटी है उनमें भी हो सकती है, वो क्यों नहीं करते आप? जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। स्टैंडिंग कमेटीज है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज हेडेड बाय द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। पब्लिक और कितनी स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन जो हैं वो आपके अपोजिशन के पास हैं? जरा सिंध में भी चल के देख लीजिए, यहां पे कितनी स्टैंडिंग कमेटीज हैं। देखिए, जमहूरियत की रूह स्टैंडिंग कमेटीज होती है, आपकी स्टैंडिंग कमेटीज को वो स्ट्रांग, और यहां पे कितनी स्टैंडिंग कमेटीज हैं जो आपके अपोजिशन लीडर के नुमाइंदे हेड कर रहे हैं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज हेडेड बाय लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये क्यों सिंध में क्यों नहीं हो सकता? वहां जमहूरियत की बातें कर रहे हैं ना, आप किसी को आंसरेबल नहीं है। अरे भाई, ये वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है जो शहीद बेनजीर ने साइन किया था। आपने तो उनके हुक्म को भी कचरे के डब्बे में डाल दिया। क्यों नहीं दे रहे? आपको इतराज क्या है? किसी को अकाउंटेबिलिटी से इतराज क्यों होना चाहिए? क्यों आप एंटी करप्शन के जो भी आपके हेड हैं वो जरा उठा के देखिए, करप्ट तरीन डीसी हमारे हलके का, जिस पे हम शोर मचाते हैं, जिसके ऊपर सेवरल केसेस अब शायद भागे हुए भी होंगे एब्सकॉन्डर, उसको उठा के वहां से लाके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। जी थोड़ा मैं एक अर्ज कर दूं इस पे जरा जी, इजाफी। जी। एक मिनट, ये पीटीआई की मखसूस हुकूमत को तो पौने 3 साल हुए, और जैसे बताया अली ने कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन के लीडर हेड कर रहे हैं और वो उसको खूब अच्छी तरह देख रहे हैं, उनका काम है, और बिल्कुल जहां जहां कोताही है उसको देखे मॉनिटरिंग में। असद उमर साहब और दूसरे जो महकमों के हेड हैं वो मिलकर देख रहे हैं कि मॉनिटरिंग कैसे हो सके, इम्प्लीमेंटेशन, जहां कोई इसमें खामी हो, कमजोरी हो, उसको दूर किया जाए। इसको बिल्कुल देख रहे हैं। जी आईपीसी की मिनिस्टर हैं आप, और खेलों से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। स्पोर्ट्स पॉलिसी जिसकी बात की जा रही थी, प्लीज, मैं चाहूंगी कि उसके बहुत अच्छा वो टॉपिक है, मैं उस पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है प्लीज, क्योंकि इसके अलावा तो आप कहीं पर नजर नहीं, आप कमाल है, ये आप मेरे पास आइए, मेरे पास आइए। आईपीसी का मामला कहां तक पहुंचा? आईपीसी कमेटी में भी ये मामला उठाया गया कि वहां पर कमेटी में जाना चाहिए था पॉलिसी का मामला, लेकिन नहीं गया। दूसरी बात, मैं सिंध के मुतालिक कौन सी कमेटी में जाना चाहिए था? ओ, स्टैंडिंग कमेटी। जी 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 जी। मैम, इसके अलावा सिंध के मुतालिक जिन मामला पर आप बात कर रही हैं, आपने तालीम की बात की, सेहत की बात की, ज़राअत की बात की, लेकिन वहां पर भी आपने खेलों को नजरअंदाज कर दिया। तो सिंध में जो खेलों का मामला है उस हवाले से आप ये करें जी। सप्लीमेंट्री लेनी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन की तैयारी कर रही है पीटीआई, वहाँ पर इसमें की स्कीमें देंगे। अच्छा चल जी, मैं सबसे पहले तो देखें, जितना शायद रोजीना आप मुझे नज़र आती हैं, शायद ही कोई और से मेरी इतनी मुलाकात होती होगी। ये इसलिए जहाँ तक स्पोर्ट्स पॉलिसी का है, वो हुकूमत का या किसी मिनिस्ट्री का काम है कि ज़ीरो ड्राफ्ट वो बनाते हैं। सो पॉलिसी जब अभी तो इट्स स्टिल इन दैट फेज जहाँ पे वी आर नेगोशिएटिंग विद द फेडरेशंस। अभी हम पाकिस्तान ओलंपिक से भी करेंगे, हम एथलीट से भी करेंगे, हम कोचेस, ये तो वो प्रोसेस है। देखिए, इवन जब 2005 में आखिरी पॉलिसी आई थी, 2005 के बाद 18वीं तरमीम आई, लेकिन किसी ने पॉलिसी का नहीं सोचा। ये तो आज हम काम कर रहे हैं उस स्पोर्ट्स पॉलिसी पे जो 18वीं तरमीम में अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सूबों के पास चली गई है और रिसोर्सेज वो चले गए हैं, तो मुझे क्योंकि किसी के डोमेन में मैं जाऊं, मैं ऊपर से हमारे रेगुलेटरी रोल, हम उनको गाइडलाइन देते हैं। हमारी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें सारे प्रोविंशियल स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स जो हैं वो उसमें हैं। हम बड़ा रेगुलर उस पर मीटिंग करते हैं, हम उनको गाइडलाइंस देते हैं और उनके साथ मैं स्पोर्ट्स पॉलिसी डिस्कस कर रही हूं। वो भी ऑन बोर्ड हैं और वो बाकायदा अपना इनपुट देते हैं। तो सूबों के इनपुट के साथ, फेडरेशंस के इनपुट के साथ, और जो
डिफरेंट स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, उनके इनपुट के साथ वो पॉलिसी आएगी, और जब वो आएगी, जब वो फाइनल शक्ल में आएगी तो फिर वो स्टैंडिंग का है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आईपीसी के वो सूबों में तो वो आपस में शेयर कर सकते हैं। हम यकीनन, मैं चाहूंगी पूरा पार्लियामेंट इसके ऊपर अपना इनपुट दे। मेरी कोशिश होगी कि मैं स्पीकर से बात करके मैं पूरे पार्लियामेंट को चाहूंगी, क्योंकि जो ये एक क्लियर नहीं है हमारी सोच, क्योंकि इन्होंने कहा जैसे कि लेकिन सिंध सूबे में स्पोर्ट्स खराब है। मैं इतराफ कर रही हूं, खराब है, बहुत खराब है। और क्या रखा है बजट में उन्होंने? हाँ, इस दफा जरूर पीएसडीपी में मैंने वो करके शोर करके कि नहीं, क्योंकि इस वक्त जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी फेडरल गवर्नमेंट की, जितने वो थे वो उस वक्त उनके हेल्थ और एजुकेशन की तरफ ज्यादा फोकस था, लेकिन सूबों ने क्या जहां क्यों नहीं खर्च किया उसके ऊपर प्रॉपर? उनको जब उनको एनएफसी में जब स्पोर्ट्स नीचे गया, सूबों के पास गया, तो बिल्कुल बुरा हाल है, और उनको करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बजट रखना चाहिए, और हम इंशाल्लाह इस दफा पीएसडीपी में उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं जी। और स्पोर्ट्स ह्यूमन राइट्स है, इसलिए बहुत फोकस है मेरा जी। जी आप क्या समझती हैं मौजूदा जो बहरान है सिंध में, क्या ये भट्टो और बेनजीर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि नहीं? पता नहीं कौन चला रहा है ये, तो हमें वो खलाइक मखलूक जो है, अब मैं कुछ बाकी बातें जो हैं वो मैं चाहती हूँ कि किसी और हम उस पर बोले, क्योंकि इस वक्त जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं उसके तक महदूद करना चाहती हूँ जी। एक सॉरी जी, एक मैं ले लूँ जी। मेरा सवाल है ना, वो रिक्वेस्ट थी, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन की तैयारी कर रही है, इसे यूनियन काउंसिल के अंदर, कराची के अंदर, बाकी सिंध के अंदर जो है इस तरह की स्कीमें लेके आ रही है, इसका जवाब दीजिए। आवामी खिदमत करिए। आपको तो जरूरत नहीं है ना। मैंने तो ये कहा कि वो यूनियन काउंसिल जहां रस्ते नहीं है वहां रस्ते दे रहे हैं। आपने तो खरीद ली है कौम, क्योंकि आप तो बादशाहत की तरह चला रहे हैं, वहां तो बादशाहत है जी। हमारी टाइम न्यूज से मेरा ताल्लुक है। ये पहले जो आपने ऐलान किए हैं, आपके इन सारी स्कीमों से पहले जो वज़ीर आज़म साहब या असद उमर साहब या पार्टियों ने किए, सीएम साहब ने कल कहा है कि ये ऐलान होते हैं, खाली ऐलान, न कोई देयर इज नो एनी न्यू स्कीम इन दिस जो बजट आ रही है, और साथ में ये खाली ऐलान, पैसों के भी ऐलान होते हैं, होता कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने खासतौर पर बदीन का उन्होंने जिक्र किया है कि वहाँ एमएलए के कहने पे न्यू स्कीम, और वो भी यूसी सतह की, जो वज़ीर आज़म की सतह के इशूज़ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसके आप जी। एक तो मैं बहुत ही, मुझे हैरत होती है कि इनको कितना कोर्टों का रिस्पेक्ट है। बहुत, जब अवाम की बात आएगी, जब अवाम के लिए कोई काम होगा तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मतलब वो छीन ले स्कीम, बदीन वालों से छीन ले, क्योंकि ना वो पाकिस्तान है, ना वो सिंध है, ना वो सिंध अवाम है। बड़ी जल्दी इनको सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत सी ऑब्जर्वेशंस हैं। यकीनन मैं इस वक्त अगर कहूंगी तो फिर जरा बात और दूर चली जाएगी। बहुत से इनके जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो यहाँ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है, वो तो कोर्टों के ऑर्डर पे हो रहा है ना। मतलब आपकी तालीम, आपकी सेहत, आपका वो सब उस पे हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने अभी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का पढ़ के सुनाया है आपको। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज क्या कहते हैं? लेस डेवलप्ड एरिया है। मेरी बात ना कीजिए, क्या वो जो भी जा रही हैं चीजें, अगर कोई रास्ता बन रहा है, अगर कोई पानी की स्कीम जा रही है, अगर कोई बिजली की स्कीम जा रही है, तो क्या वो आवाम के घरों पे जा रही है? उन लोगों तक जा रही है जो इनकी जिम्मेदारी थी 13 सालों से। 13 सालों में सिंध आज कहां होना चाहिए था? अनइंटरप्टेड इनकी हुकूमत रही है। बाकी सूबों में तो चले, एक हुकूमत गई, दूसरी आई, शायद उन्होंने पिछले के प्रोजेक्ट्स रोक दिए होंगे, शायद कुछ और सियासत कर ली होगी। यहां तो अनइंटरप्टेड और पहले से ज्यादा इनको दे दी जाती है। तो 13 साल में तो बता दीजिए ना। एक तो आवाजें सिंध असेंबली में भी उठती हैं, और मैं तो आपको दावत देती हूं, आइए मेरे साथ सिंध चलिए। देखिए, सिंध को अब बचाना है, क्योंकि जो हालत है इस वक्त वहां, अगर मीडिया चुप रही, अगर अवाम चुप रही,
और इन्होंने अगर अवाम और इन डेवलपमेंट के बीच में आने की, तो ये अवाम खुद अपना रास्ता बनाएंगे। ये उनके हकों पे डाके डालते हैं, ये उनको अगर कोई एक उम्मीद हुई है उनको, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं जिनके ऊपर लाजिम है, क्योंकि ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे हल्के में तालीम आए, मेरे हल्के में सेहत आए, मेरे हल्के में पानी आए, ये उनका हक है, सिंध का हक है, और प्राइम मिनिस्टर पे उतनी ही जिम्मेदारी है। जी जी, लास्ट में ले लेती हूँ जी। लेकिन जो हमें कच्ची कहने वाले उससे अच्छी शिकायत की जितनी सिंध से आती है, आपकी इंडस्ट्री इंटर प्रोविंशियल कॉन्डिशन को रोक देती है, तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं कर सकते कि आप हिंदुस्तान या फिर बिना देखिए उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा कि सिंध का पानी जो रोकने का मेन जो बनाया गया था कि कालाबाग डैम बनने से सिंध का पानी बहुत ज्यादा रुक जाएगा। क्या कालाबाग डैम अगर बन जाए तो सिंध के लिए रिजर्व बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है? नहीं, देखिए एक तो जो इतना कंट्रोवर्शियल चीज हो उसको तो बिल्कुल लानी नहीं चाहिए, जिसको 3 सूबों की रेजोल्यूशंस आ चुके हैं, 3 सूबाई असेंबलियां जिसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर चुकी हैं, इसलिए आई थिंक कि उस कंट्रोवर्शियल उस पे जाने की बात, जहां तक आपने बात की, देखिए हमारा आर्टिकल 155 है जो पानी के, और वो CCI पे जिम्मेदारी डालता है, इसलिए बलूचिस्तान भी वहां मौजूद है, सिंध भी वहां मौजूद है, और दोनों उसके ऊपर इन इश्यूज के लिए एक फोरम मौजूद है जिसके ऊपर वो कर सकते हैं। और यकीनन इरसा, जो भी इरसा से अगर आपको इख्तिलाफ है, आप पार्लियामेंट में भी डिबेट करा सकते हैं, लेकिन आप लाइए CCI में उसको बैठ के उसके ऊपर डेलिब्रेट करें, क्योंकि बलूचिस्तान की पूरी भरपूर नुमाइंदगी है, बलूचिस्तान के CM बैठते हैं, वो बलूचिस्तान का केस करेंगे, और सिंध के CM बैठते हैं तो वो सिंध के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इसका हल यही है कि टेलीमेट्री सिस्टम, जिसको क्यों पिछली हुकूमतों ने, क्योंकि इसकी मंजूरी भी हुई थी, इसके अगेंस्ट पैसे भी रखे गए थे, वो टेलीमेट्री सिस्टम क्यों नहीं उसकी तरफ गए। अब मैं समझती हूँ इसका हल ही यही है कि टेलीमेट्री सिस्टम ना विद इन द प्रोविंस, ना इन बिटवीन द प्रोविंसेस हो, बल्कि सूबों के अंदर भी बहुत जरूरी है, मुख्तलिफ बैराजेस पे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, और मेरी बड़ी जो इन्विटेशन है वो बहुत सिंसियर है कि प्लीज सिंध आइए और सिंध का केस कीजिए। जी बिल्कुल कोऑर्डिनेट ही नहीं करता ना आपका। वफाकी वज़ीरा फहमीदा मिर्ज़ा और मियां मोहम्मद सुमरो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध में बुनियादी ढांचे की अबतर सूरत हाल है, सिंध में वसाइल पर सिर्फ बाज़ लोगों का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत ने सिंध में बेशुमार तरक्याती मंसूबे शुरू किए।